नमस्कार, गुड डे एवरीवन। बजाज टॉकी सीजन 3 के हमारे दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बजाज एनर्जी के हमारे नोएडा हेड ऑफिस से श्री अमित मित्तल जी। विथ मोर देन 20 years of experience in the power industry, Amit ji is currently heading the Department of Regulatory Affairs for Bajaj Group's power business. Welcome, sir. Thank you. Thank you. 2020 I think आपने ज्वाइन किया है, so how has been your journey with Bajaj Energy? I joined on 7th of October 2020. I remember that day because that was a time when COVID was going on, and I joined here. And since 2020 till date, there is not a single day in which I have not encountered the challenges which are required as a professional in the power sector. In fact, I started my career as a EPC in the EPC distribution segment of a distribution company in Reliance Energy that point of time. In 2015, I have joined Adani Power. It's a 1200 megawatt power plant in which I was handling commercial as well as functions of that particular plant. And then after that, I have joined since 2020. I have joined Bajaj, which is a very unique experience in terms of the depth and the breadth of the cases and the issues that we are handling. So I am very blessed, I must say, to have that kind of experience in such a short span of time. सर, रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करें, इट इज आपकी जो टीम है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज दैट आल्सो गो इनटू इट। सो एग्जैक्टली क्या रोल होता है इस डिपार्टमेंट का, और आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, उनके बारे में अगर कुछ बताएं। I have a team of 5 people in regulatory department, and I must say that I have got the best of brains in the regulatory segment in India. My department is also geared up for doing the commercial due diligence as well as regulatory due diligence in terms of computation, whether that particular opportunity is suitable for us or not. The regulatory affairs department is sort of a compliance department in most of the other sectors की बात करें या दूसरे अनरेगुलेटेड सेक्टर की बात करें तो, बट यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है दैट इज मेनली टू डू विद द आपका पीपीए कॉम्प्लायंसेस जो होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट जो आपने साइन किया है, उसमें देयर आर वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइन की गई हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ जनरेटर एज वेल एज अपोजिट साइड में यूटिलिटी को भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई हैं। उसमें देयर इज अ वेरी क्लियर कट चार्टर की दिस इज द वे द बिलिंग शुड बी डन, दिस इज हाउ यू हैव टू पे, if and this is how I have to perform as a generator कि मेरे को normative availability या कितना generation करके उनको देना है। So all those things are there. Way back in 2010, there was a time wherein UP was struggling with coping with the power requirements. So basically at that point of time, our chairman has taken a call that in order to be a holistic partner in the overall journey of Uttar Pradesh, we have decided to invest in the thermal power sector. We have added around 2,430 megawatt, which is operating. Yesterday, I was talking about we are achieving the plant load factor, which is the generation which we are generating of more than 90%, because our plants are reliable and we are able to achieve what is required by the पावर सेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। सर, पावर सेक्टर का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी बात करें, जो काफी सारे एक्ट्स भी इसके अंडर आते हैं, सो अगर हमारे लिए कुछ एक कॉमन पब्लिक नॉलेज के लिए आप शेयर कर सकें कि किस तरह के एक्ट्स होते हैं इसमें। ना बहुत ही यूनिक चीज है सुरुचि, इसमें पावर सेक्टर है वो एंटायरली रेगुलेटेड सेक्टर है। रेगुलेटेड सेक्टर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसमें एक फिक्स रिटर्न मिले लोगों को, सो दैट बिकॉज इट इज फाइनली जो भी पावर का जो प्राइस है वो कॉमन मैन ही बियर करता है। फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस आती है वो आपको इन ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक बिल आता है रिटेल कंज्यूमर्स के पास और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के पास। तो जब ये एनविसाज हुआ, बिकॉज एक तो पहला चीज ये था कि पावर सेक्टर इज ए वेरी पावर यानी कैपिटल इंटेंसिव, बहुत पैसा लगता है, यानी एक मेगावाट के लिए करीबन 8 से 9 करोड़ का खर्चा आता है, तो ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इसलिए इसमें एक रीजन ये था इनिशियली कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में लेके आना है तो एक तो रेगुलेटरी सर्टेनिटी होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर को कोई पैसा लगाएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट वांटेड, जो 2003 के बाद जब शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहला ये था कि एक एश्योरेंस रहे कि आप पावर सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो आपको रिटर्न गारंटीड मिलेगा कि इतना आपको रिटर्न मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर में ये डिफाइन किया गया कि स्टेट लेवल पे
स्टेट रेगुलेटरी कमीशन होगा जो कि पावर को रेगुलेट करेगा, प्राइस को रेगुलेट करेगा, इंश्योर करेगा कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। पावर सेक्टर में इफ यू सी देयर आर थ्री मेन सेगमेंट्स। वन इज द पावर जनरेशन जो कि हम लोग हैं, पावर जनरेटर्स हैं। सेकंड इज द ट्रांसमिशन जो कि जो पावर स्टेशन से जो पावर ट्रांसफर की जाती है टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एट द रिटेल लेवल, उसके लिए बीच में ट्रांसमिशन जो हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। उसके बियॉन्ड में देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, लाइक यहाँ पे आपके वहाँ पे बीएसटी होगी, मुंबई में बीएसटी है, अदानी एनर्जी है, फिर टाटा पावर है। सो दे आर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन दैट एरिया, जो कि उनका काम ये होता है कि जो पावर जनरेशन से खरीदें और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाएं, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके घर तक के जो मीटरिंग और वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रहता है। हमारा क्या है कि वी हैव 2430 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन, और हम लोग का सारा पावर जो है यूपी स्टेट को ही जाता है। there is nothing which is going out of the state, so we come under the jurisdiction of the UP State Electricity Commission, which is located in Lucknow. जो स्मार्ट मीटर्स की बात है, आपने यहाँ पे बात की अबाउट द कंज्यूमर पॉलिसीज एज वेल, जो टैरिफ पॉलिसीज हैं। सो आपका क्या मानना है स्मार्ट मीटर्स के बारे में? इज इट अ गुड मूव फॉर द कंज्यूमर और व्हाट इज योर थॉट? आज की डेट में जो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 400 कंज्यूमर्स कनेक्ट रहते हैं। तो उस ट्रांसफार्मर से कितने 400 कंज्यूमर्स कनेक्टेड हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनका कंजम्पशन क्या है, डेली पैटर्न क्या है। अगर आप मीटरिंग करेंगे, हर एक लेवल पे मीटरिंग करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि यू कैन आइडेंटिफाई कि चोरी कहाँ पे हो रही है। सो आई थिंक दिस रिमोट मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, प्रीपेड मीटरिंग, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो नाउ ऑल द न्यू मीटर्स हैव टू बी प्रीपेड मीटर्स। तो यानी आपको एडवांस में पे करना है, तो उसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूटिलिटी हैज कम डाउन। सो ऑल दोस इनिशिएटिव्स आर वेरी गुड। पावर जो है, पावर को आप एज ए कमोडिटी ट्रीट नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इट इज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू पावर, बट एक्चुअली में क्या है ना कि इसको भी एज ए, जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, आप कैन यू नेवर क्वेश्चन कि व्हाई इट हैज टू बी चार्ज, हाउ इट हैज टू बी चार्ज, बिकॉज यू दैट इज ऑलवेज इन योर माइंडसेट कि वो उस तरीके से ही पे होता है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड डूइंग अ राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू द कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि आपका क्या बेनिफिट है इस पे। आई फील दैट देयर इज अ डेफिनेट बेनिफिट फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी पेइंग। इसमें तकलीफ उनको है कि जिनको, अगर मान लीजिए इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, वो थोड़ा सा अगर वो गैप अगर ब्रिज कर दें तो दैट विल बी वेरी एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। Yeah, so in a way कहा जा सकता है this is also a way forward in evolution of the country's power sector, we can say. Very interesting, sir. और जैसे कि आपने बताया, this is also to make people aware कि पावर हमें एक इज अ कमोडिटी जो हमें संभाल कर इस्तेमाल करनी चाहिए. We shouldn't be taking it for granted, and that's a future plan for sustainability as well. जो हमारी जैसे कि आपने बताया, it's so expensive to produce 1 megawatt of electricity. तो हमारी कंपनी के जो पॉलिसीज रहे हैं उनके बारे में अगर कुछ बात करें, बिकॉज जैसे कि आपने भी बताया, स्टेट के साथ मिलकर के स्टेट डेवलपमेंट के लिए, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन ओवरऑल, हमारी कंपनी हमेशा ये काम करती आई है. मैं थोड़ा सा स्टेप बैक लेता हूँ, जो आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है, कि इसमें जस्ट एक चीज मैं क्लैरिफाई करूंगा, बिकॉज आई थिंक इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट करने की है कि हमने हमने कौन सा पाथ चूज किया है। हमने पाथ ये चूज किया है एज बजाज एनर्जी कि हमें प्रॉफिटेरिंग नहीं करना है, यानी वी आर नॉट हियर टू गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। यहाँ पे जब जब ये 2010 में डिसीजन लिया तो दैट ऑप्शन वाज आल्सो अवेलेबल विद आवर चेयरमैन टू गो इनटू द कॉम्पिटिटिव बिडिंग बेसिस। कॉम्पिटिटिव बिडिंग में क्या होता है कि उसमें आपने बिड जो किया उसमें फाइनली देर इज नो प्रूडेंस चेक फॉर दैट पर्टिकुलर कॉस्ट। बट हमने क्या चूज किया कि हम जो एक इन्वेस्टमेंट करेंगे वो प्रूडेंस चेक, यानी स्टेट कमीशन कॉस्ट प्लस बेसिस पे जाएंगे। एक डेफिनेट रिटर्न मुझे मिलेगा, यानी 14-15% जो भी वॉट एवर इज द कमीशन जो डिटरमाइन, जो रेगुलेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो ही आई एम एंटाइटल्ड फॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2012-13 से लेके 16-17 तक के, they were companies who were
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पावर सेक्टर वाज इन डेफिसिट, तो लोगों ने 8-8 9 9 10 10 रुपए तक के पावर सप्लाई किया, और वी वेर सप्लाइंग एट 1 रुपी 80 पैसा, 2 रुपीज 24 पैसा फिक्स चार्जेस, और 2 या 3 रुपए। सो हमने जब सप्लाई किया है, वी हैव बीन completely in support of the UP state, wherein we have supplied at a much lesser rate, and that is a conscious call taken. It is not that it is something that has come in a go. We have taken a conscious call कि we will only be expecting a nominal rate of return which is guaranteed by the, while I was investing I was guaranteed that rate, उतना ही मैं charge करूंगा, उसके ऊपर इन्हें सारा चीज cost plus रहेगा. So that call we have taken, and that is how we have sustained over a period of last so many years. A lot of companies have come and gone in this segment, and we have sustained through, because that was a conscious decision taken by our chairman. Right. So this again reminds me of all my interviews जहाँ पे लोग ये चीजें बताते हैं, and this is also another example of how our company Bajaj Group has stood there for the nation building, the development of the state, development of the country. So thank you for sharing this with us. People have started talking about renewable energy, and we are into thermal power plants. So एक जो वो एक स्ट्रगल है या फिर जो चैलेंजेस है, इंडस्ट्री किस तरह से इवॉल्व हो रही है, उसके बारे में भी अगर कुछ बताएं। इसमें बहुत यूनिक चीज है कि जब 2015 के बाद देयर वाज अ ह्यूज वेव ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बहुत सारा सोलर इन्वेस्टमेंट हुआ, प्लस विंड इन्वेस्टमेंट हुआ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैटरी. जब सोलर सोलर पावर आया, तो उस टाइम पे सोलर आवर्स जो बोलते हैं, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक के, इस टाइम तक के आपका नॉन पीक आवर हो गया, यानी जिसमें आपका रिक्वायरमेंट कम हो गया, आपके पास अवेबिलिटी ज्यादा हो गई पावर की, और आपका डिमांड कम है, बिकॉज सोलर पावर इज अवेलेबल. और सोलर पावर जब जनरेट करते हैं तो उसी टाइम पे आपको कंज्यूम करना है, उसको स्टोर करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है वो. तो इसलिए अभी जो भी सोलर पावर अभी क्या कर दिया है रेगुलेटरी सेगमेंट में, कि आपका जो सोलर पावर है जो जनरेट कर रहे हैं उनको आपको रन करना है, उसके बाद बैकिंग डाउन इंस्ट्रक्शन उस टाइम पे थर्मल जनरेटिंग स्टेशन को मिलता है. तो अभी जो आपने बोला रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से हम कैसे मेंटेन करें, हाउ वी आर सपोर्टिंग, जब सोलर पावर ज्यादा मिलती है तो उस टाइम पे हमारे थर्मल पावर स्टेशन को बैक डाउन करते हैं, तो वी जनरेट लेस ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स. और जब पीक आवर्स रहते हैं, जो कि शाम के 5 बजे से सुबह 2 बजे तक चलते हैं यूपी में, तो उस टाइम पे हम मैक्सिमम जनरेट करते हैं. So that shows की the reliability of the power plant that we have. We are supporting the grid as of now. यानी हमारे बिना renewable भी नहीं चलेगा. So that is very important. Thermal is absorbing the variability of solar and wind from by reducing its power and increasing its power whenever it is required. In terms of compliances, we are 100% compliant with all the laws and whatever environmental requirement that we have. Now अभी आप देखेंगे there are at least 20 to 30,000 megawatt of thermal power stations के tenders आए हैं, government state governments ने निकाले. So that is a realization wherein again the investment is coming back to the thermal power sector. Plus the renewable is going to stay, but it has to be in the right kind of proportion as compared to thermal power generating stations. जैसे कि आपने कहा, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर द नेशन, फॉर द स्टेट स्पेसिफिकली. एंड एक चीज और आपने बताई सर कि जो स्टेट की रिक्वायरमेंट थी उससे जुड़कर हमारी जो कंपनी है उन्होंने शुरुआत की बजाज एनर्जी की. तब से लेकर अब तक किस तरह से चेंजेस आए हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग. थ्रू आउट आवर investment journey, we have been supportive of the Uttar Pradesh, and we really believe in the story of Uttar Pradesh and its requirement and its growth. That's why we are still consistent in terms of developing it. If you see the growth pockets, उरई हो गया, आपका गोरखपुर कॉरिडोर हो गया, जेवर के आसपास के इन अराउंड एरिया हो गए, सारे जो ग्रोथ पॉकेट्स हैं दे विल ग्रो मोर देन 20 to 30% ग्रोथ रेट. अभी जो नॉर्मल जो हम CAGR ग्रोथ लेते हैं किसी भी स्टेट का, वो आप एवरेज देख के देखते हैं. बट जो नए डिमांड सेंटर्स आ रहे हैं जिसमें पहले कभी था ही नहीं, इट वाज नो डेवलपमेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस देयर. सो अभी वो जो आएगा उसकी वजह से देयर इज लॉट ऑफ पावर रिक्वायरमेंट दैट विल कम इनटू द स्टेट. इनफैक्ट आज की डेट में भी इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया. एंड उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसी आई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है यूपी गवर्नमेंट की, दैट इज आल्सो एनकरेजिंग प्राइवेट प्लेयर्स एंड वेरियस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू कम इनटू उत्तर प्रदेश, व्हिच विल अगेन एड द डिमांड ऑफ पावर सेक्टर. यूपी स्टेट को जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसमें हमारा कितना योगदान है एज बजाज एनर्जी, व्हाट इज द
if you can tell us in percentage, what is the supply that we are doing? Approximately, अगर हम देखें, we have actually installed capacity of 2,430 megawatt. Now the demand is increasing. So basically it is around 10% of what we have. I have no doubt that we will be the single biggest generator in next 5 to 6 years. We will be the main cornerstone in terms of power sector in the UP power sector. Abhi bhi, we are the most single largest IPP in Uttar Pradesh. Similarly, we are also planning lot of investment in Uttar Pradesh. So all those taken together, we will be significant player in the power sector in future also. राइट राइट, थैंक यू सर। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप बता रहे हैं जो यूजुअली हमें पता नहीं होती हैं, एंड वी टेक पावर यूटिलिटी थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आई मस्ट से। एंड इससे मूविंग ऑन, अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहूंगी कि इन चीजों के अलावा व्हाट आर योर हॉबीज, आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या कैसे टाइम स्पेंड करते हैं आप इन अ फ्री? I have a loving wife. I am blessed with two daughters. Elder daughter is in class 10th and younger daughter is in class 6th. Uh, मेरा जो हॉबीज है, आई लाइक ट्रैवलिंग, रीडिंग बुक्स। मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि जो जो न्यू आइडियाज़ पे वर्क करना। सो आई रीड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ न्यू एरियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, in terms of watching sports mainly. मेरे को क्रिकेट एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर यूजुअल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बट वो उसमें काफ़ी पसंद है, और स्क्वॉश खेलना पसंद है बहुत। और इंटरेस्टिंगली इसमें आफ्टर आई ज्वाइंड Bajaj, there is a better work-life balance that I have experienced in terms of culture and everything. Uh, this is one of the very positive side since 2020, since I've joined here. So family life is also in a very good shape in terms of work-life balance is good in this company, and we are really thankful for creating that culture in and around the employees. Lot of collaborative efforts are going on in terms of various departments. कोई भी issue आता है तो उसमें lot of teams, कि आप किसी के पास भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी से भी इंटरेक्शन करके you can get their inputs. ग्रेट सर। और ये चीजें शो भी करती हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कल्चर हमारी कंपनी का है, बिकॉज ऑफ दैट लास्ट टाइम जो हमारी बात हो रही थी, हमारे एचआर हेड हैं जो सक्सेना जी, द रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज इज रियली गुड in our company, and a lot of people have stayed for more than 5 years, and we had the Seva Samman awards as well in the last December. The lot of employees have given me feedback. Bajaj was only one of the few companies which have not retained a single person in during that COVID period. Which actually that's why अगर आप इसमें attrition rate आप बाहर की कंपनीज का और अपनी कंपनी का देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है, because people are actually glued to the company, and company standing with them at the tough point of time. So that's one of the cultural aspect, I would say, right from the grand old days. It has continued till date. जो बजाज परिवार हमारा है, दे आर ऑलवेज टुगेदर, एंड आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ। सो थैंक यू सर, आज आपने काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें बताई कि किस तरह से पावर इंडस्ट्री में एक रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट काम करता है। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much.